मेरा याली है। हरी हरी खाते बैन बहाने मीठे पानी को, रब याली मेरे को, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब याली मेरे को, मेरे दिल नू नहीं डोल। मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जवावेगा। मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जवावेगा। अपने नानी खातिर मैनू देना सच्चाई को, रब याली मेरे को, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब याली मेरे को, मेरे दिल नू नहीं डोल। मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां। मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां। खौफ बलावां दा ना हरगिज़ होवेगा मेरे कोल। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। खुदा यीशु मसीह ने कहा क्या आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है और मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ। और आज जो खौफ है कोरोना वायरस, ये हमारे खुदा यीशु मसीह की इलाही कुदरत से बढ़कर नहीं है। कोई भी ऐसा वायरस, ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज कोई नहीं है जो हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा कर सके। आमीन। हम फिर मिलकर कहेंगे कि मौत दे साए ताजो जंगल जद मैं उस विच जावां। मौत सब खड़े होकर साए ताजो जंगल जद मैं उस विच जावां। मौत दे साए ताजो जंगल जद मैं उस विच जावां। खौफ बलावां दा ना हरगिज़ होवेगा मेरे कोल। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। दुश्मन आके मेरे वास्ते रब बचाता मेरे। दुश्मन आके मेरे वास्ते रब बचाता मेरे। तेल भी मेरे सिर ते उते सोने होई डोल। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। मेरे दिल नू नहीं डोल। मेरे दिल नू नहीं डोल। आए हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और सब मिलकर कहेंगे छलनी छलनी हो गया घोड़ों की मार से। छलनी छलनी हो गया घोड़ों की मार से। जुल्म सितम को सह
چلنی چلنی ہو گیا کوڑوں کی مار سے اس جہاں کے پیار میں جیون لٹا دیا اس نے جہاں کے پیار میں جیون لٹا دیا اس نے جہاں کے پیار میں جیون لٹا دیا جیون لٹا دیا دل کے گناہ وہ دھو گیا بہتی دھار سے دل کے گناہ وہ دھو گیا بہتی دھار سے ظلم و ستم وہ سہ گیا ظلم و ستم وہ سہ گیا کتنے ہی پیار سے کتنے ہی پیار سے چلنی چلنی ہو گیا کوڑوں کی مار سے کوڑوں کی مار سے کوڑوں کی مار زمین و آسمان کے خالق و مالک خدا یسوع سبھی دعا کریں گے کلام تیرے حضور میں سر وجود ہے خدا تیرا شکر کرتے ہیں یسوع راج تیری تعریف تیری تمجید اس وقت کے لیے خدا جو تو نے دیا کہ تیری حضوری میں جمع ہے ہاللویا ہو یسوع راج جتنے لوگ تیری حضوری میں ہیں خدا تو سب کو چھو برکت سے معمول کر یسوع راج یقیناً خدا پرستش کے وسیلہ سے تو نے اپنے لوگوں کو برکت دی ہے یسوع راج اب وقت ہے خدا تیری زندہ آواز سن تعریف اب وقت ہے کہ خدا تو ہمارے ساتھ ہم کلام ہو اب وقت ہے کہ خدا تو اپنے خادم کے ذریعے سے اپنی آواز ان زندگیوں تک اتارے خدا یسوع ان زندگیوں میں اتارے اے خدا یسوع تو خدا ان زندگیوں کو تیار کر اے خدا سرخیز زمین کی طرح ان دلوں کو خدا تیار کر جب تیرے کلام کا بیج بویا جاتا ہے خدا یسوع تو خدا سوگ نہ پھیلائے خدا یسوع یہ زندگی ہے خدا یسوع تیرے کلام کے وسیلہ سے سوگ نہ برکت پائے خدا یسوع تیرا خادم خدا یسوع راجا اس چرچ کے لیے لوگوں کے لیے خدا یسوع راجا یقیناً برکت کا باعث ہے تیرے شکر گزار ہے خدا اپنے خادموں کو جگہ بہ جگہ اپنے جلال کے لیے لے کر جاتا ہے اسیروں کی طرف لیے پھرتا ہے استعمال کرتا ہے خدا یسوع راجا ہمارا ایمان ہے خدا یسوع تو اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے خدا یسوع اے خدا جب تیرے کلام کی آواز تیرے لوگوں تک پہنچتی ہے خدا تیرا کلام خدا زندگیوں کے لیے سوگنا پھادا ثابت ہو خدا یسوع یہ زندگیوں خدا تبدیل ہو ان زندگیوں میں گزشتہ وقت میں اگر کوئی کمی کمزوری تھی تو خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے ابھی اور اسی وقت جاتی رہے جب تیرے کلام کی آواز بہن بھائی سنتے ہم سنتے ہیں خدا یسوع تو کمیاں کمزوریاں دور ہوں اور خداوند یہ آنے والے وقت میں ان زندگیوں سے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خداوند اور اے خداوند تیرے خادم کو تیرے پاک لوح میں چھپاتا ہوں خداوند تیرے ممسوح کو تیرے حضوری میں لاتا ہوں خداوند تو خداوند اس کو بلیس کر خداوند یسوع جب پھولتا ہے خداوند تیرا پاک روح جنبش کرے ان زندگی کو چھوئے اور اے خداوند تو اپنے خادم کو روح کا دگنا مسا دینا رب جلال کے لیے استعمال کرنا مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین ہم کھڑے ہی رہیں گے اور خدا کے خادم کو ہم سب کی تالیوں کی گونج میں ہم اسٹیج پر ویلکم کریں گے پاسٹر آصف صاحب جن کے سب تشریف رکھیں آج بھائی صاحب کے کچھ لمحات ہمارے ساتھ گزریں گے کیونکہ 6 بجے ان کی فلائٹ ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت کو حاصل کریں
Thank you. Praise God. की तारीफ हो। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बार फिर ये मुमकिन हुआ कि मैं आप लोगों के दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। और उसके बाद मैं ख़ास तौर से फुल गॉस्पल चर्च इंटरनेशनल अपोस्टोलिक फेलोशिप कोलालमपुर मलेशिया एशियन चर्च के पास्टर अरशद खोखर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़ी फराखदिली के साथ मुझे एक बार फिर अपने चर्च में कलाम सुनाने का मौका दिया। और ये मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है, बड़ी ऑनर की बात है। और मैं इस चर्च के एल्डर जनाब आमिर गिल साहब, जो कि रिश्ते में मेरे चाचू भी लगते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़ी, जब से मैं मलेशिया में कुआलालंपुर में हूँ, उन्होंने मेरे साथ खुदा की खिदमत को बड़ी खुश असलूबी से, तंदही के साथ और बड़े एक्टिवली उसको किया। और मेरे साथ वो अपने काम की भी मसरूफियात, खिदमत की भी मसरूफियात के साथ साथ वो भाग दौड़ करते रहे। और मैंने खुदा उनको इस मेहनत का अजर दे और उनकी खिदमत को बरकरार करे। और मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं वापस जा रहा हूँ, तो आप लोगों ने ये मौका दिया कि एक बार फिर आपके दरमियान कलाम की खिदमत की जाए। तो मैंने मुनासिब जाना कि जाते हुए, चूँकि हम रोज़ा के ताल्लुक से बहुत कम जानते हैं, समझते हैं, उसके ताल्लुक से हम बहुत कम तालीम रखते हैं। तो मैंने समझा मुनासिब जाना कि आज मैं रोज़ा के ताल्लुक से कुछ बयान करूं कि रोज़ा बिब्लिकली हमें क्या सिखाता और क्या बताता है। और रोज़े के ताल्लुक से हम चंद बुनियादी बातें ऐसी हैं जो पहले से जानते हैं। मैं उसको एक क्विक आयादा समझ के बयान करूंगा, और उसके बाद रोज़ा के वसीला से एक्चुअली मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पॉइंट पर आऊँ, मैं रोज़ा के ताल्लुक से आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि जब हम रोज़े को समझ लेंगे तो फिर मेरे पॉइंट को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ शामिल है, वो भी इस बात को सीखेंगे। मेरे सामने एक हवाला है खुदावंद के ज़िंदा कलाम में, उसका पुराने अहदनामे में अस्फार खमसा में इस्तिस्ना की किताब, जो अस्फार खमसा की आखिरी या 5वीं किताब है, इस्तिस्ना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ लोगों के मुंह से ये लफ्ज इस्तिस्ना भी सुना है। इवन के बड़े बड़े तजर्बाकार खादिमों को भी मैंने सुना है, वो भी इस्तिस्ना कहते हैं। इस्तिस्ना कोई लफ्ज नहीं है, इस्तिस्ना, जिसका लफ्ज ही मतलब है दूसरी शरीयत, दोबारा दी गई शरीयत। तो इस्तिस्ना की किताब, और मैं चाहूंगा उसके 21 बाब की 18वीं से 21 आयत तक अगर कोई पढ़े, कोई बुलंद आवाज से भाई या बहन आप में से पढ़े, या अच्छा होगा कि यहाँ मेरे पास आकर माइक में पढ़ दें ताकि ये रिकॉर्डिंग में भी जा सके। तो अगर, हाँ जी, आ जाए, आप आ जाए, जो जिसको खुदा का रूह आता है। आप 18 से 21 आयत तक आप लोगों से पढ़वाने का ये मतलब है कि आप लोगों को खुद भी एहसास हो कि हम क्या कर रहे हैं। जी, माइक ले लें आप। इस बार में यूं लिखा है, अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनके तनबिया करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकाल कर उस शहर से के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं, और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करे
कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता, ये लफ्ज मेरे पीछे पढ़े क्या? ये हमारी बात नहीं मानता, ये हमारी बात नहीं मानता, आप जाइए, और उड़ाऊ और शराबी है। जी, आगे बढ़े। तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए। यूं तुम ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। खुदाम के पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। खुदा का शुक्र। जी, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। ये खास हवाला मैंने इसमें जो एक खास लफ्ज थे जो मैंने आपको रिपीट कराए, वो आज मेरा टॉपिक है, और वो लफ्ज हैं कि माँ बाप अपने बेटे के बारे में शहर के या कलीसिया के या कौम के बुजुर्गों को ये बताएं कि ये हमारी बात नहीं मानता और उड़ाऊ और शराबी है। ये लफ्ज याद रखें, उड़ाऊ और शराबी। इसकी बाइबल में बड़ी सख्त मुमानियत है, और इस हवाले में हम देखते हैं कि ये बड़ा सख्त हवाला है। इसमें बड़ी सख्त हुक्म दिया गया कि अपने बेटे को जो माँ बाप की बात नहीं मानता, नाफरमानी करता है, उड़ाऊ और शराबी है, उसको कौम के लोग संसार करें कि वो मर जाए। बड़ी सख्त सजा है। यूं लगता है कि जैसे खुदा ने इसराइल को ये कैसा हुक्म दे दिया, और मेरे ख्याल में तारीख गवाह है कि आज तक बनी इसराइल में कभी कोई ऐसी औलाद हमें नजर नहीं आई जिसको कौम ने संसार करके इस बायस मार दिया हो, क्योंकि वो खुदा का खौफ रखने वाली कौम थी। और आगे लिखा है, तब सब इसराइली सुनकर डर जाएंगे। और ये हुक्म इसीलिए खुदा ने दिया था कि हम खुदा का खौफ मानते हुए उसकी हदूद से तजावुज ना करें। उन हदूद को जो मुकर्रर कर दी गई है कलीसिया ने, उनसे बाहर ना निकले। ये पॉइंट याद रखिएगा। इस पे हम वापस आते हैं। रोजा क्या है? रोजे के ताल्लुक से चंद बातें बड़ी क्विकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी जब भी आप रोजा रखें तो उसमें ठहरने से पहले इन चंद बातों का जानना और इनसे वाकिफ होना ईमानदार के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इन बातों से वाकिफ नहीं तो फिर ये रोजा नहीं है, ये सिर्फ भूखा रहना है, इसका कोई हासिल हसूल नहीं है, ये महज डाइटिंग है। इट्स नॉट फास्टिंग बट इट्स फीस्टिंग। बहुत से लोगों में, बहुत सी कौमों में हम देखते हैं रोजा फीस्टिंग के लिए रखा जाता है, फास्टिंग के लिए नहीं। फीस्ट होती है ज़ियाफत करना, उड़ाना, एंजॉय करना, बड़ी ज़ियाफत करना। और बहुत सी कौमों में हम देखते हैं कि लोग जब रोजा रखते हैं तो शाम को बड़े एहतमाम करते हैं, शाम को बहुत बड़ी फीस्ट, बड़ी ज़ियाफत तैयार हो जाती है। तो वो रोजा नहीं होता, वो फास्टिंग नहीं, वो फीस्टिंग होती है। तो लेकिन बहुत से लोग महज रोजा जो है ना वो ये समझ कर रखते हैं कि जी चलो हमारा वजन ही कम हो जाएगा। ये भी बात नहीं है। रोजा बड़ी संजीदा बात है। और रोजा क्या है? ये खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए उसकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। और रोजा रखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे हमारा कोई मकसद है। बहुत सी कलीसियाओं में ये खास दिन कहते हैं जी कि रोजे के हैं, इनमें रोजा रखो, लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जब तू रोजा रखे, इसका मतलब है कि आप जब चाहें, आप जब आपको जरूरत महसूस हो, जब आपने खुदा की कुर्बत को हासिल करना है तो आप रोजा रख सकते हैं। और रोजा बा मकसद होना चाहिए, और रोजा आपकी जरूरत के मुताबिक, और ये जानने के लिए कि उसके खुदा क्या आपको नताइज मुहैया करता है और आप खिदमत के लिए कैसे तैयार होते हैं। रोजा बेसिकली जिस्म की जंग है। जिस्म को काबू में करने का एक तरीका कार है, क्योंकि जिस्म की रिक्वायरमेंट जो है वो फूड है। जिस्म खुराक, इमेजिन करें फूड, वाओ, हम पार्टियों का इंतजार करते हैं, फूड का इंतजार करते हैं, खाने का इंतजार, हम हर चीज छोड़ सकते हैं लेकिन खाने को नहीं छोड़ सकते। और रोजा जो है इसी चीज को बताता है कि हमने किस तरह जिस्मानी जंग का सामना करना है।
पहले ग्रंथियों में उसके 9वें बाब की 27 आयत में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जिस्मानी जंग का हमें सामना है, रूहानी जंग का सामना है, और कामयाबी और फतह या नाकामी का जो बायस है ये जिस्म की ख्वाहिश है। और आदम की गिरावट भी हम बाइबल में देखते हैं कि जिस्म की ख्वाहिश के बायस है, क्योंकि उसने औरत ने देखा कि देखने में खुशनुमा, आंखों को खुशनुमा, खाने में लजीज है और अकल बख्शने के लिए खूब है। तो ये जिस्म की एक जंग है। आदम अव्वल जो है उसने फल खाया, जबकि आदम सानी ने हमें अपने बदन की रोटी दी। जिस्म की ख्वाहिश हमें गिराती है, जबकि रास्तबाजी हमें खुदा की हजूरी में बहाल करती है। रोजा कई किस्म का हो सकता है। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं इसको, क्योंकि मैं अपने मकसद तक आना चाहता हूं कि रोजा कई किस्मों का बाइबल में जिक्र किया गया है। अगर आप क़ज़ात में देखें, पहले सैमुअल क़ज़ात 20 बाब उसकी 26 आयत में देखें, पहले सैमुअल 7 बाब 6 आयत में देखें, दूसरे सैमुअल के पहले बाब की 12 आयत के अंदर देखें, तो आपको रोजा 12 घंटे का मिलता है, जो सुबह से शाम तक है। सुबह से शाम तक 12 घंटे का रोजा। फिर हम देखते हैं कि एमाल 13 बाब और उसकी दूसरी तीसरी आयत में, एमाल 14 बाब उसकी 23 आयत में, और एमाल 27 बाब और उसकी 9वीं आयत में हम 24 घंटे का रोजा देखते हैं। फिर हमें 7 दिन के रोजे का जिक्र मिलता है। 72 घंटे के रोजे का जिक्र हमें आस्तर की किताब में 14 बाब और उसकी 16 आयत, 9वें बाब और उसकी 31 आयत के अंदर मिलता है। फिर हम 7 दिन के रोजे का जिक्र बाइबल में देखते हैं। फिर हम 40 दिन के रोजे को देखते हैं, जो हमें खरूज में 2 मरतबा मिलता है। 24 बाब और 34 बाब के अंदर आप ये हवाले भले लिख सकते हैं, जो लोग लिख रहे हैं आप काउंट कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। खरूज 14 बाब 18 आयत और 34 बाब 38 आयत 28 आयत, और फिर इस्तिस्ना 9 बाब 9 आयत और इस्तिस्ना 9 बाब और 18 आयत। पहला सलातीन 19 बाब 8 आयत, और मरकस पहला बाब उसकी 13 आयत, और लूका 4 बाब और उसकी पहली आयत। ये 40 दिन का रोजा है, जिसमें हम देखते हैं कि मूसा ने ये रोजा 2 मरतबा रखा। हम देखते हैं एलिया ने इस रोजे में से वो गुजरा 40 दिन के लिए। यीशु मसीह ने ये रोजा 40 दिन का रखा। रोजा जो है वो इसके जो मैनी है, इसका मतलब है कि अपनी जान को दुख देना या अपनी नफ्स कशी करना। ये पुराने अहदनामे में इसका मतलब था, अपनी जान को दुख देना। और हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में हमें बहुत से हवाले मिलते हैं जब रोजा रखने के लिए टाट ओढ़ा जाता था, अपने जिस्म को दुख दिया जाता था, अपने आप को तकलीफ दी जाती थी, ताकि खुदा हमारी सुने। और सबसे बड़ी मिसाल हम देखते हैं यूना नबी की, जब वो नैनवा में गया, तरसीस को भागते हुए नैनवा में खुदा ने उसे पहुंचाया, तो नैनवा के तमाम लोगों ने रोजा रखा और टाट ओढ़े, और उन्होंने खाने पीने से, खुराक से यहाँ तक मुंह मोड़ा कि अपने जानवरों के मुंह भी बांध दिए, और ताकि वो भी न खा सकें। फिर हम नए अहदनामे में अगर रोजे का मकसद देखें तो नए अहदनामे में इसके मानी मजीद वाज़ेह हो जाते हैं, मजीद खुलकर सामने आते हैं। नए अहदनामे में इसके मानी खुदा की मर्जी को खालिस्तन उसकी मर्जी के का तालिब होना और उसकी मर्जी को जानने के लिए रोजा रखा जाता है। हम देखते हैं कि पौलुस ने भी रोजा रखा, लेकिन हमें बाइबल ये नहीं बताती कि पौलुस ने जो रोजा रखा वो फर्जी था या अख्तियारी था। हम देख सकते हैं एमाल 13 बाब और 14 बाब, दूसरे ग्रंथियों 6 बाब और 11 आयत के अंदर। लेकिन हमें अगर हम यशाया के अंदर देखें 58 बाब के अंदर, तो हमें ये भी एक मिसाल मिलती है कि बहुत से लोग दिखावे के लिए भी रोजा रखते हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए। और कलाम में हम देखते हैं कि कलाम ये बयान करता है कि ये वो रोजा नहीं जो खुदा को पसंद हो, क्योंकि वो लोग अपना, यीशु मसीह ने भी कहा कि लोग अपना मुंह बनाते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। तो दिखावे के रोजे खुदा को जरूरत नहीं है। रोजा का मकसद और मैनी जो है मायूसी या नाकामी। बहुत से लोग, हम हर रोज नाकामियों का सामना करते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सी नाकामियां हैं। हमने हमेशा, हमें से कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी मुकाम पे, किसी न किसी मकसद में नाकामी का सामना किया हो। अगर नाकामी है तो उसमें खुदा का रहम मांगने के लिए रोजे में ठहर सकते हैं कि खुदा मुझे क्यों नाकामी है, इसमें तेरा क्या मकसद है, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, तो आप रोजे में ठहर सकते हैं। पछतावे के लिए बहुत से लोगों से गुनाह हो जाते हैं, कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिनका पछतावा ता हयात उनको रहता है।
آپ تب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں پچھتاوے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں پہلے سیموئیل 7ویں باب میں ایسا روزہ ہمیں ملتا ہے جو پچھتاوے کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کسی خاص مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے, اور اس میں ہم سب سے بڑی مثال دیکھتے ہیں آستر ملکہ کی کتاب میں کہ پوری قوم نے کسی خاص مقصد کے لیے روزہ رکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں دوسرے تواریخ میں اور عزرا میں ہم ایسے حوالے ملتے ہیں, عزرا 8 باب اور اس کی 21 آیت, اور دوسرا تواریخ 20 باب کی 3 آیت کہ دوسروں سے روزے کی اپیل بھی کی جا سکتی ہے. آپ آپ خود بیمار ہیں, شوگر, زیادہ تر لوگ جو ڈائبیٹک ہیں یا میڈیکلی نہیں فٹ, وہ زیادہ لمبا روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ دوسروں سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی اگر نہیں بھی کر سکتے تو کوئی کلیسیا کے لوگ ان کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسروں سے اپیل بھی کی جا سکتی ہے روزے کی. اور پھر آستر میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے روزہ, آستر ملکہ نے دوسروں کے لیے, اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا. پھر ہم یرمیہ میں اس کے 36 باب میں دیکھتے ہیں اس کی 9ویں آیت میں کہ اجتماعی روزہ, کلیسیا میں, قوم میں کوئی بڑی آفت ہے, پریشانی ہے, تو آپ اجتماعی روزہ رکھ سکتے ہیں. آج کل بہت سے چرچز میں روزے کی اپیل کی جا رہی ہے. یہ جو ابھی پادری صاحب نے, پاسٹر ارشد صاحب نے دعا میں, اس سے پہلے دعا سے پہلے انہوں نے کرونا وائرس کا ذکر کیا کہ بہت سے چرچز بند ہو رہے ہیں, لوگ نہیں جا رہے. تو ایسی صورتحال یا کبھی آفت کوئی ہو, کوئی عالمی پرابلم ہو, عالمی وبا ہو, یا کچھ ایسا سلسلہ یا قوم پر کوئی مصیبت آئے, تو چرچز میں اجتماعی روزہ, اکٹھا روزہ, اس کی منادی بھی اور اپیل بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ فلاں دن مقرر ہے, کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ روزہ کے لیے ایک دن مقرر کرو, تو آپ مقرر کر سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے مطابق روزہ جزوی ہے, اس لیے روزے کا ایک دن مقرر کرنا بہت ہی بہتر ہے. اس کے حوالے آپ کو یوئیل پہلے باب اور یوئیل دوسرے باب میں مل سکتے ہیں. پھر لوکا 18 باب اور اس کی 12 آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی باقاعدہ روزہ رکھتے تھے. ہم اس فریسی اور محصول لینے والے کی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے, آگے کہتا ہے میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہودی باقاعدہ رکھتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گو کہ بائبل میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کس موسم, کس سیزن میں کوئی باقاعدہ دن ہو یا مہینہ ہو روزہ رکھا, لیکن یسوع مسیح نے روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا. اگر متی 6 باب میں دیکھیں تو اس نے لکھا ہے جب تو روزہ رکھے, یعنی کہ آپ جب محسوس کریں اس کی ضرورت ہو تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور پھر جب یسوع کو آزمایا گیا کہ کیا بات ہے, فریسی تو روزہ رکھتے ہیں, تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے, تو یسوع مسیح نے کہا وہ دن آئیں گے کہ میرے شاگرد روزہ رکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت مرتبہ روزے, اس کا مطلب واضح ہے کہ ہمیں روزہ جو ہے وہ یسوع مسیح نے روزہ رکھنے سے منع نہیں. اشتہا انگیزی یا کھانے پینے کا بہت شوقین ہونا, یہ کیتھولک چرچ کے اندر 7 ڈیڈلی سنس میں سے ایک تھا. سلات اس کو کہتے ہیں. سلات وہ سن ہے جس کو کلیسیا نے ڈیڈلی سن کا درجہ دیا ہے. 7 ایسے گناہ جو موت کا باعث ہے, ڈیڈلی سن, انتہائی ورس سن ہے, ان میں سے ایک اشتہا پسندی ہے. اور ہم نے استثناء میں اس کا پروف دیکھا کہ خدا کے کلام میں کہا گیا کہ اگر کوئی کھاؤ ہو, حریص ہو, اگر آپ امثال میں دیکھیں 23 باب میں, امثال 28 باب میں بار بار اس لفظ کا ذکر ہے کہ کھاؤ اور اڑاؤ. اور یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ اگر یہودی قوم میں کسی کو کھاؤ یا اڑاؤ کہا جائے تو اس کا در پردہ انڈائریکٹلی مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شدید ترین گناہ کا مرتکب ہے, اس لیے اس کو قوم سے خارج کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ایسا الزام یسوع پر بھی لگایا گیا کہ کھاؤ اور شرابیوں کا یار. تو اب دیکھیں کہ روزہ کے تعلق سے ہم اس لفظ کو کس طرح لے سکتے ہیں. کھاؤ کا لفظی مطلب اڑاؤ, حریص, شرابی اور مصرف ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ مصرف بیٹے کی تمثیل میں کہ اس نے اس کی یہ عادت بالآخر اسے موت کے دہانے پر لے آئی، ایسی جگہ پر لے آئی جہاں وہ ناپاک جانوروں کی خوراک کھانے پر مجبور ہو گیا۔ تو گلٹنی، اشتہا انگیزی، یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، بلکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم نعمتیں اور برکتیں حاصل کریں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے علم پہنچائیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 12 سے 20 آیت کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بدن کیا ہیں؟ ان سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ بہت سی کلیسیاؤں میں آج کل کھانے کا فیشن بن گیا ہے۔ کلیسیاؤں میں کھانے دیے جاتے ہیں، پارٹیاں کی جاتی ہیں، ڈنر ارینج کیے جاتے ہیں، بڑا کچھ کیا جاتا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لسٹ فار فوڈ یا لسٹ فار سیکشول ڈیزائر دے بوتھ آر امورل۔ خدا کی نگاہ میں یہ دونوں ناپاک ہیں، اور اس میں لسٹ فار فوڈ یا لسٹ فار سیکشول ڈیزائر، ان دونوں کی سزا کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ موت سنائی گئی ہے، کیونکہ دونوں لسٹ فار سیکشول امورالٹی یا لسٹ فار فوڈ، یہ دونوں بدن جسم کی خواہش ہے، یہ جسم کی خواہشوں، جسم کی بھوک کی غمازی ہے، چاہے کھانا ہو یا زناکاری یا جسم کی خواہش، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ جسم کی بھوک کی غماز ہے، یہ جسم کی بھوک، ان دونوں کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اور کلام میں جتنی ہم نے عام زندگی میں بدن کو اہمیت دی ہے، اتنی ہی کلام میں روح کو بھی اہمیت دی گئی ہے، اور کلام میں روح اور بدن دونوں کو برابر اہمیت دی گئی ہے کہ ہمیں اپنے بدن کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنے بدن کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا۔ اور ابلیس جو ہے وہ روح کو ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن روح کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ وہ جسم کا سہارا لیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، اسی لیے یسوع مسیح نے روزے کے تعلق سے کہا وہ دن آئیں گے۔ آپ نے یسوع مسیح نے، ہم دیکھتے ہیں کلام ہمیں بتاتا ہے، بڑا واضح بیان کرتا ہے کہ روح تو مستعد ہے مگر جسم، ہم جسم کی خواہش۔ آپ دیکھیں لسٹ فار فوڈ جو ہے وہ ہر کسی کو اشتہا پسندی، ہم پارٹیوں میں جاتے ہیں، ہم کھانوں کے لیے ایپیٹائزر یوز کرتے ہیں، آپ کسی بڑی پارٹی میں جائیں پہلے آپ کو سٹارٹر دیے جاتے ہیں جو ایپیٹائزر ہوتے ہیں، پھر ہم بڑی بڑی سیزننگ کھانوں کے اوپر لگاتے ہیں، کیچپ اور پتہ نہیں کیا کیا چٹنیاں، ہم اشتہا پسندی میں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کھانا کھا لیا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ غنودگی، سست ہو جاتا ہے بندہ، نیند آتی ہے، ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے، بہت کھا لیا جی، ریسٹ کرنا چاہتا ہے، بدن کی خواہش، اور یہ سیٹن زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گلٹنی کے گناہ کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ ریسٹ کرنا ہے، یعنی جو روح کو ٹائم دینا ہے، جو وقت ہم نے روح کی مستعدی کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ ہمارا جسم کو دینے کا ٹائم ہوتا ہے، اور ہم جسم کو آرام دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ ہمیں جسم کو تابع رکھنا ہے، جتنا زیادہ ہم جسم کو تابع رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری روح مستعد ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام ہمیں بڑا واضح متی 26 باب میں بتاتا ہے کہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور، وہ کھانے کی غنودگی کے باعث ہمارا اچھا وقت ہم سے چھین لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں روزہ یہ ایک بڑا خاص اصول ہے، بائبل میں دائیکی کا ایک اصول مقرر کیا گیا ہے، ٹائپ کا۔ اور ٹائپ ہم کیوں دیتے ہیں؟ ٹائپ کا مطلب ہے گیو فار گیونگ، گیو فار گیونگ، ہم نے دینے کے لیے دینا ہے، لیکن روزہ جو ہے گیو فار ٹیکنگ ہے۔ خدا کو اپنا آپ دو تاکہ اس سے برکت لو، اور خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ ہم اپنے بدن خدا کو دے کر خدا سے روح کی مستعدی
اور قوت لے سکتے ہیں. اور اس کا ثبوت ہمیں رومیوں 12 باب میں بڑا واضح ملتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو پسندیدہ ہو, جو خدا کے نزدیک سب سے بیسٹ سمجھی جائے. اور خدا کے نزدیک سب سے بیسٹ بھلا کیا ہے؟ خدا کی مرضی پوری کر. کلام کہتا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اب اشتہا پسندی جو ہے جسم کی خواہش ہے. میں واپس اپنے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, جسے گلٹنی کہا گیا ہے, اور اس کے خطرناک نتائج بھی ہیں اور اس کا بڑا خطرناک مفہوم بھی ہے جو ہم نے استثناء میں دیکھا, اور اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے جسم کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ شرابی اور اڑاؤ کا تعلق روح سے نہیں بلکہ جسم سے ہے. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں سیلف کنٹرول ہو. ہم بہت سی جگہوں پر سیلف کنٹرول ہوتے ہیں, لیکن بہت مرتبہ لوگ کھانے کی جگہ پر سیلف کنٹرول نہیں ہوتے. اور جو لفظ انگریزی میں آپ کے سامنے یوز کر رہا ہوں گلٹنی, یہ لاطینی لفظ گلیٹیرو کا ترجمہ ہے جس کا مطلب کچھ زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں سمجھ آنے کے لیے بیان کرنا ضروری ہے. گلیٹیرو کا مطلب جو ہے وہ مطلب ہے کہ کھانے کے اوقات سے ہٹ کر کھانا, اشتہا انگیز ہونا, ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچنا, لالچ کرنا. وہ ایک مقولہ ہے کہ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ, جسم کی ضرورت کے مطابق کھاؤ. لیکن بہت سے لوگوں کی خواہش صرف کھانا ہوتی ہے. اس معاملے میں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کی کہ کیتھولک کھانے کے آداب کے بارے میں بڑے سخت اور سنجیدہ, اور وہ اپنے اوقات کو بالکل پابندی سے فالو کرتے ہیں, اس کی پاسداری کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے کیتھولک ننس ہاسٹل میں تعلیم حاصل کی, آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا جب کھانے کا وقت آپ اس پہ اویلیبل نہیں تو وہ اسکپ ہو گیا, اس کے بعد آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور آپ نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے. اس لحاظ سے کیتھولک بہت سٹرکٹ ہیں اپنے. کیوں؟ کیونکہ کھانا جسم کی خواہش ہمیں گناہ کی طرف راغب کرتی ہے. آپ یوناتن کو نہ بھولیں, ساؤل کا بیٹا, اس نے جسم کی خواہش کے لیے پوری قوم سے گناہ کرایا. اس نے باپ کی قسم توڑوا دی صرف جسم کی خواہش کی کہ اس کے بدن, اس کا بدن کھانا چاہ رہا تھا. پہلے سے اس کے 14 باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں اس واقعے کو. پھر ہم دیکھتے ہیں گنتی 11 باب کے اندر کہ اس جسم کی خواہش نے بنی اسرائیل کو خدا سے یہاں تک دور کر دیا کہ خدا اس قوم کو تباہ کرنے کو تیار تھا اگر موسیٰ بیچ میں کھڑا نہ ہوتا. موسیٰ اوپر گیا تو کیا ہوا؟ ملی جلی بھیڑ نے جسم کی خواہش کے لیے ایک عید یا ضیافت کرنا شروع کی, لیکن اس کا کوئی ریزن ہونے چاہیے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی تو نہیں جمع ہو رہے. اس جمع ہونے کے لیے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا, اس کی عید شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا یہ وہ خدا ہے جو تجھے وہاں سے لایا. اور اس بچڑے کا مطلب بھی ضیافت تھا, کیونکہ بچڑوں کو ذبح کرنا اور ضیافتیں اڑانا. اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ کھانے پینے کو اور ناچنے گانے کو اٹھے تھے, کھانا پینا. اور کلام کہتا ہے کھانا پینا ہمیں خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں بنا سکتا. تو بنی اسرائیل سے اتنا بڑا گناہ ہم گنتی 11 باب میں دیکھتے ہیں کہ ملی جلی بھیڑ نے خدا کا گناہ کیا اور جسم کی خواہش سے مغلوب ہو کر آسمانی غذا کی حقارت کی. اور آسمانی غذا روح کی غذا ہے. یسوع کہتا ہے کھانے پینے کی فکر نہ کرو بلکہ کس کی فکر کرو؟ روح کی فکر کرو. بہت سے لوگ صرف کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں اور یوں وہ یسوع کی جگہ اپنی خواہشات کو, اپنے جسم کو پہلی جگہ دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایلی کاہن کے بیٹوں نے کیا کیا, وہ بھی جسم کی خواہش کے اسیر تھے, غلام تھے, اور بلاخر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے ان کو مارا اور ایلی کا پورا خاندان, اس کی لائن ہی جو بلڈ لائن تھی وہی سٹاپ ہو گئی. ایلی بھی مر گیا, اس کے بیٹے بھی مر گئے. کہانت ان سے جاتی رہی. جسم کا گناہ جو ہے وہ کہاں تک؟ پھر اس
से बड़ी एक बात, अगर आपको कभी YouTube में मेरे सरमन देखने का मौका मिले तो आप ढूंढ सकते हैं, वहां पे सदूम और अमूरा, मौजूदा सदूम और अमूरा, हमारे बदन सदूम और अमूरा बन गए हैं और सदूम और अमूरा का हाल हमारे सामने है। सदूम और अमूरा भी जिस्म की ख्वाहिश के बाइस तबाह हुए, तबाही का शिकार हुए और बिलाखिर उनका नतीजा हम देख सकते हैं। जिस्म की ख्वाहिश हमसे हमारा तकद्दुस और हमारा एजाज छीन लेती है, जबकि रोजा हमें हर कमजोरी पर गालिब आने की कुव्वत बख्शता है। हम बदन पर गालिब आकर रूह को मुस्तैद कर सकते हैं, लेकिन जिस्म को ताबे करना यीशु के जलाल के लिए बहुत जरूरी है। अब आखिर में अजीजों, आप जानते हैं कि रोजे की बाइबल में क्या अहमियत है, रोजे की इकसाम क्या है, और रोजा दर हकीकत जिस्म की डाइटिंग नहीं है या महज फीस्टिंग नहीं है। रोजा है हमें जिस्म की ख्वाहिश पर गालिब आने की कुव्वत को हासिल करना और खुदा की मर्जी को जानना। इसके मकासद क्या है और किस तरह हम अपने जिस्म पर गालिब आ सकते हैं, फैसला आपके अपने हाथों में है कि हम जिस्म के ताबे होना चाहते हैं या जिस्म को अपने ताबे करना चाहते हैं। फैसला आप पर है। खाने और पेट के गुलाम हैं या इसकी गुलामी से बाहर हम इस पर गालिब आने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन इस पर गालिब आने के लिए हमें खुदा के कलाम की रहनुमाई की जरूरत है और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। खुदा आपको बरकत दे। मैं और बोलना चाहता हूँ लेकिन मैंने टाइम का भी ख्याल रखा है, मेरी फ्लाइट है, तो मैं खुदा ने जब चाहा कभी जिंदगी में दोबारा मौका मिला और खुदा की मर्जी हुई तो मैं दोबारा आप लोगों के दरमियान आऊँगा और मज़ीद गहरे तौर पर मैं बाकायदा सेमिनार क्लास लूँगा सुबह से शाम तक, जिसमें हम रोज़े के ताल्लुक से, इश्तिहा पसंदी के ताल्लुक से, जिस्म और रूह की के जंग के ताल्लुक से, जिस्म की ख्वाहिश और रूह की मुस्तैदी के ताल्लुक से हम बहुत कुछ सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। हम ज़बूर 72 गाते हुए खुदा की तारीफ करेंगे और इसी के दौरान अपने हदीये नजराने, अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा की नजर करेंगे। सब मिलकर गाएंगे। रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का, रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमायो दिया धन्यवाद गावन, ते कौमायो दिया धन्यवाद गावन, जो इस्राएलिया तारा खुदा है, जो इस्राएलिया तारा खुदा है, अजाइब कम करना सदा है, अजाइब कम करना सदा है, अजाइब कम करना सदा है। हालेलुया। आमीन। आए अपने सर को झुकाएं सारी शुक्रगुजारियों के लिए, खुदा के जिंदा कलाम के लिए, खुदा के मकसूद के लिए हम
खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और ख़ास तौर पर हम खुदा के खादम के सफ़र के लिए खुदा मुझसे ख़ास रहनुमाई चाहेंगे कि खुदा उनको खैर खैरियत से बड़ी हिफाजत के साथ अपने ख़ानदान के अंदर पहुँचाए और वो खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। भाई विशाल के साथ मिलकर हम इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जमीन आसमान दे मालिक तेरा धन्नवाद करते मेरे प्यारे खुदा। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਖੁਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ। ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੇਰ ਪ੍ਰਿਆਪ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਪ੍ਰਿਆਪ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। सारे की झोली भरनी मेरे प्यारे खुदा। तुझे कलाम में लिखा है खुदावंद मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, खड़काओगे तो तुमको खोलोगे खुदावंद। असी मंगिया असी पाया, तुझे असी खड़काया तुझे खोलिया खुदावंद। तेरा मैं धन्यवाद करता मेरे प्यारे खुदा। दया कर मेरे प्यारे खुदा। तुझे क्या मेरा हाथ ना छोड़ा नहीं, मेरा तो संभाल ना सका, मेरा कान ना पारी नहीं, क्यों तुम्हारी दुआ ना सुन सका मेरे प्यारे खुदावंद। कि साडे दुआवां सुनिया खुदावंद सानू जवाब दिता, थोड़ा धन्यवाद करता मेरे प्यारे खुदा। मेरे पर याद रख मेरे प्यारे खुदा। आया सारी संगतां दी झोलियां पर मेरे प्यारे खुदा। दया कर मेरे प्यारे खुदा। जो कलाम सुनिया खुदावंद आज दा झोलियां पर नहीं चला मेरे प्यारे खुदा। दया कर मेरे प्यारे खुदा। सारे खादमों तेरे हैंड ओवर करता मेरे प्यारे खुदा। मेरे पर याद रख मेरे प्यारे खुदा। जितने भी जान तेरे नाम में चिल्ला दे सके मेरे प्यारे खुदा। दया कर मेरे प्यारे खुदा। छोटी दुआ सुनते कबूल कर मांगने यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम जावेद भाई के लिए दुआ करेंगे जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक खुदावंद में सो गए, और जो पाकिस्तान से हमारे भाई यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो भी अपनी जगह पर खड़े होंगे, और मैं पास्टर आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएंगे और उस गमज़दा ख़ानदान के लिए और इन भाइयों के लिए, ख़ास तौर पर इन भाइयों की जॉब के लिए खुदावंद से रिक्वेस्ट करेंगे। हालेलुया। आगे आप जल्दी से। Kakak mau sembahyang? Mari. ये इंडोनेशियन सिस्टर हैं, भाई शबाज के मिसेस हैं और जो पीछे हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और इन सब मुनाजात इल्तिजाओं को खुदा की हजूरी में रखें। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा आप अपने दाहिने हाथ इन लोगों की जानिब बढ़ाएं। सबसे पहले हम उस दुखी खानदान गमज़दा खानदान के लिए जो इस कलीसिया का हिस्सा है, उनका भाई जावेद जो खुदावंद में सो गए हैं, जो ईमानदार थे, हम उनकी तसल्ली के लिए, उनके खानदान की तसल्ली के लिए दुआ करेंगे। जलाल कमाल हशमत और बुजुर्गी के बादशाह मसीह यीशु में हमारे जिंदा वफादार ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई हम तो जयकार करते हुए तेरी पाक हजूरी में हम सब मुत्तफिक होकर आते हैं और तेरी हजूरी में उस दुखी खानदान के लिए तेरी तसल्ली का हाथ चाहते हैं। खुदा हम जानते हैं कि हम सबको बिलाखिर इस जहान से जाना है, और खुदा हम जानते हैं कि जब हम मसीह में हैं तो हमारे पास एक उम्मीद धरी है, और वो उम्मीद अच्छी है। हम तेरी बादशाही का हिस्सा बनेंगे जहां हमारी आंखों के आंसू पहुंच दिए जाएंगे और हम तेरी हजूरी में हमेशा शादमान रहेंगे। और खुदा जो मसीह में अब से मुर्दे सोते हैं, खुदा
वो तुझ में अबदी आराम पाते हैं। और खुदा हम जानते हैं कि वो इस जहान से रहलत करके एक अच्छी जगह पर चले गए हैं, और खुदा उनके वसीला से हमें भी अपनी जिंदगी के आयाम गिनना सिखा। मैं उस दुखी खानदान के लिए तेरे आसमान पर से तसल्ली की दुआएं कर चाहता हूँ। इसी तौर से खुदा मैं इन तीनों भाइयों को नाम लेकर तेरे मसबा पर याद करता हूँ। खुदा तू जो कि इनको दूर दराज के मुल्क से यहाँ लेकर आया, खुदा तेरे कलाम का वादा है कि जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। खुदा यीशु के नाम में हम इनके लिए खुदा भलाई को मांगते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके लिए भलाई मांगते हैं। खुदा इनकी सारी डॉक्यूमेंट्स की और खुदा जॉब की जितनी जरूरियात हैं सबको अभी से तेरे रूल कुछ के सुपुर्द करते हैं। तू टेक केयर कर। और खुदा हम अपनी सब फिक्रें तुझ पर डालते हैं क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है। और खुदा इनकी जिंदगियों से तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल दे। इसी तौर से खुदा मैं इस कपल को तेरी हजूरी में लाता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं भाई शहबाज को, उनकी मिसेस को, sister, what's your name? Lord, I thank you for Christina. Our Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, I thank you for Sister Christina. Lord, I thank you for your unconditional love through your Son Jesus Christ, whom you gave for our sins on the cross, and through him we became the heirs of eternal life. I thank you for your unconditional love through your Holy Spirit who guides us, leads us, and I thank you for your Holy Spirit that you have engraved us on the palms of your hands, Lord. I thank you for my sister. Bless her, give her health, prosperity, and uplift her, encourage her in faith in Christ Jesus. इसी तौर से खुदा मैं भाई शहबाज के लिए तेरे आसमान पर से बरकत और सलामती की दुआ कर चाहता हूँ। इनके बच्चों को तेरी हुजूरी में याद करता हूँ। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम महज हवा में बातें करने वाले नहीं, बल्कि तुझ जिंदा खुदा से बातें करते हैं जो सुनता है, जवाब देता है और छूता है और बरकत देता है। यीशु के नाम में तमाम मुनाजात को तेरे मसबा पर लाते हैं। सुन और कबूल कर यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे।